ناظرین السلام علیکم۔ ہر طرف جشن طرب ہے، آج روز عید ہے، رنگ عالم ہی عجب ہے، آج روز عید ہے۔ ناظرین، عید الفطر کے اس پرمسرت موقع پر 4 TV انتظامیہ اور اسٹاف آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ عید آپ کے لیے خوشیوں کا پیام لائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں سرخیوں کی جانب۔ شہر میں عید الفطر جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عیدگاہوں اور مساجد میں کثیر اجتماعات، امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے رقت انگیز دعائیں۔ ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو جاری و ساری رکھنے ائمہ و علماء کی تلقین، دہشت گردی کے واقعات کی مذمت۔ ریاستی وزراء اور مختلف قائدین نے مسلمانوں کو دی عید الفطر کی مبارکباد، نیک تمناؤں کا کیا اظہار۔ مدینہ منورہ میں ہوئے دہشت گرد حملے کے خلاف جمعے کو دارالسلام میں کل جماعتی احتجاجی جلسہ عام، عامۃ المسلمین سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر میں عید الفطر جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عیدگاہوں اور مساجد میں فرزندان توحید کے کثیر اجتماعات دیکھے گئے۔ ائمہ اور علماء نے اپنے خطابات میں مسلمانوں کو ماہ رمضان کے بعد بھی عبادتوں کو جاری و ساری رکھنے کی تلقین کی۔ نماز عید کے بعد امت مسلمہ کی سلامتی اور اسلام کی سربلندی کے لیے رقت انگیز دعائیں کی گئیں۔ ماہ مقدس رمضان میں عبادتوں، روزوں اور تراویح کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندے نماز عید کے لیے عیدگاہوں اور مساجد میں جمع ہوئے۔ بزرگوں، جوانوں اور بچوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کیں اور مغفرت طلب کی۔ حیدرآباد میں عیدگاہ میرعالم میں ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ مولانا ڈاکٹر محمد سیف اللہ نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو جاری رکھنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مسلمان رہیں گے دنیا چلتی رہے گی۔ موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا محمد سیف اللہ نے کہا کہ آج مسلمانوں کو سوریہ نمسکار اور یوگا کے ذریعے ورغلایا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا ہی ابھریں گے۔ مولانا نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ کسی کے آلہ کار نہ بنے۔ مسلمان ہے اللہ کا نام لینے والا، الحمدللہ آج بھی روزہ رکھنے والے ہیں، الحمدللہ آج بھی نماز پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ آج بھی حج کرنے والے ہیں، الحمدللہ آج بھی نیکیاں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ابھی قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ ابھی مسلمان ہے۔ جب تک کہ ہم رہیں گے یہ دنیا چلتے رہے گی، ہمارے لیے بنی تھی، ہم نہ ہوں تو یہ ختم ہو کے رہ جائے گی۔ آپ کو ورغلانے کے لیے بہت ساری چیزیں کی جائے، کبھی سوریہ نمسکار کے عنوان سے، کبھی یوگا کے عنوان سے، کبھی کوئی عنوان سے، کبھی کوئی عنوان سے، کبھی ڈرا کر، کبھی کچھ کھلا کر، کبھی کچھ پلا کر۔ آپ نیشنل غذا بنا دیجئے صاحب اس کو، ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی کر لو۔ یہ مسلمان الگ ٹائپ کا ہے، مسلمان کا معاملہ ہی الگ ہے۔ ہم تم سمجھے ہی نہیں دنیا والوں مسلمان کو، ان کو جتنا دباتے جائیں گے یہ اتنے ابھرتے جائیں گے۔ غور کرو ذرا، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے میرے حبیب پاک کی زندگی پہ غور کرو، کیا نہیں ستایا گیا؟ طائف پہ پتھرے برسائے گئے، نماز پڑھے تو اوجڑی ڈالی گئی، شاعر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، پاگل کہا گیا، کیا کیا کہا گیا، ایک سے ایک اذیتناک تکلیف دی گئی۔ رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کیا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ بلائے حبیب انہوں جتنا دباتے دبانے دو،
कितना दबाते दबाने दो, इन्हों अपनी ताकत से दबाओ, मैं अपनी ताकत से तुम्हारे को इतना उठाऊंगा, अक्ल इंसानी हैरान रह जाना। मेराज करा के बता दिया। मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने अपने खिताब में कहा कि मुसलमान अल्लाह के अहकाम पर चलेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करेंगे, तभी वो दीन दुनिया में सुरखरू होंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान अल्लाह ताला की तरफ मुकम्मल रुजू होंगे तो कोई भी ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपन अच्छे बन जाएंगे ना, अच्छे दिन खुद अल्लाह अता फरमा देगा। अल्लाह के अहकामात पे चलेंगे, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करेंगे, इंशाअल्लाह अभी सर बुलंद रहेंगे। आज हमारे बारे में कुछ भी बोल रहे थे, जो मुंह का आया हक लेते। जब चमन को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी भी गर्दन कटी। अब ये कहते हैं हमसे अहले वतन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। अरे ये हमारा वतन है, हमारे बुजुर्गों ने अपना खून बहाया है और खून बहाकर इस मुल्क को सजा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे को सिर्फ जिल्लत उठाना पड़ा है, तो इसलिए कि हम अल्लाह से अपने रुख को मोड़ लिए हैं। जब आप अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, फिर कोई ताकत नहीं है इसी के आपके तरफ नजर उठा के देखे। उनकी हिम्मत हो आपको देखने की। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने पाकी इख्तियार की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ईदगाह मीरालम में नमाज ईद अदा की। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी और मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। उन्होंने दुनिया में अमन की बरकरारी के लिए दुआ की। रुकन असम्बली मजलिस ने रमज़ान के बाद भी मुसलमानों को अल्लाह की इबादतों को जारी रखने और मसाजिद को आबाद रखने की तलकीन की। और यही इबादत को आप रमज़ान के बाद भी जारी रखें, ताकि हर बस्ती की मस्जिद तंग दामनी का शिकवा करे, तौसीए मस्जिद की नौबत आए। आप लोगों से गुजारिश है कि नमाज़ों की कायम करें, मस्जिदों को आबाद रखें और अपने वतन के लिए हर एक में आप तमाम को दुआ कीजिए, दुआ में याद रखिए। और मैं फिर एक मरतबा तमाम आमियतुल मुस्लिमीन को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा तक अल्लाह ताला इस महीने को और इस साल को खुशहाली का साल बना दे और तमाम के लिए बेहतरीन खुशियों का साल नसीब करे, आमीन। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने ईदगाह मीरालम पर पुलिस इंतजामात की रास निगरानी की। डीसीपी सौ जोन वी सत्यनारायण भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने मुसलमानों से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी और बच्चों में चॉकलेट तकसीम किए। महेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहर में नमाज ईद के मौके पर गैर मामूली इंतजामात किए गए थे और शहर में नमाज ईद पुरअमन तौर पर अदा की गई है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अवाम के ताउन की वजह से ही माह रमज़ान में मौसर इंतजामात मुमकिन हो पाए। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी अमन कानून की बरकरारी के लिए अवाम का ताउन दरकार रहेगा। तमाम पब्लिक के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से ईद मुबारक। पूरा हैदराबाद सिटी में हर एक जगह में ये प्रेयर्स अमन और शांति के साथ आज कंप्लीट हुआ है। पूरा एरियाज में सिक्योरिटी और बंदोबस्त ट्रैफिक अरेंजमेंट्स करने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से लगभग 10,000 पुलिस ऑफिसर्स एंड मैन इसमें शामिल हैं और पूरा अरेंजमेंट्स कम्युनिटी सपोर्ट के साथ, पब्लिक की सपोर्ट के साथ ये पूरा फेस्टिविटीज़ एक महीने तक ये रमज़ान फेस्टिवल, ये मंथ लॉन्ग फेस्टिवल पीसफुली निकल गया है। हमारे ये पूरा एफर्ट पब्लिक की सपोर्ट से, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट और पार्टनरशिप से ये हम कर सके। आने वाले दिन में भी पब्लिक का ऐसे सपोर्ट रहे तो हम उनके साथ रह के, उनके बीच में रह के
ये हैदराबाद सिटी में अमन और शांति रखने के लिए हम कम्युनिटी के साथ कदम कदम मिलके काम करेंगे एंड आई विश all the people of Hyderabad city a very happy Eid, and I congratulate all the members of Hyderabad public for having organized these festivities in the entire month in a very peaceful and brotherlyhood manner. तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज ईद के लिए फर्जंदान तौहीद का कसीर इज्तिमा देखा गया। नायब शेखुल फ़िक़्हा जामे निज़ामिया हाफ़िज़ मोहम्मद लतीफ़ अहमद ने खुतबा दिया और नमाज ईद की इमामत की। नमाज के बाद उम्मत मुस्लिमा की सलामती और इस्लाम की सरबलंदी के लिए रिक़्क़त-अंगेज़ दुआ की गई। ईदगाह मादनापेट में नमाज ईद के लिए कसीर इज्तिमा देखा गया। रुकन असम्बली याक़ूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने ईदगाह में नमाज अदा करते हुए मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं और हमारे कारपोरेटर्स और हमारे इब्तदाई के सदर मुतमदीन और महबान मजलिस हम तमाम लोग ईदगाह मादना पेट के अंदर ईद उल फितर की नमाज अदा किए। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। ईदगाह उजाले शाह में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने खुतबा दिया और मौलाना इमरान तकीउद्दीन ने नमाज ईद की इमामत की। फर्जंदान तौहीद की कसीर तादाद ने नमाज ईद अदा की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने ईदगाह उजाले शाह में नमाज ईद अदा करने के बाद अवाम से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। ईदगाह बिलाली हाकी ग्राउंड पर नमाज ईद के लिए कसीर इज्तिमा देखा गया। मौलाना शाह जमालुर रहमान ने खुतबा दिया और मुफ्ती तजम्मुल हुसैन ने नमाज ईद की इमामत की। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नमाज ईद के बाद अवाम से फ़र्दन मुलाकात करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। हकीमपेट दरगाह ईदगाह में मुसलमानों ने खुशी व खुजू के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने नमाज ईद की अदायगी के बाद मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह सनत नगर, ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही, मिलिट्री परेड ग्राउंड, ईदगाह अंबर शाह बाबा अंबरपेट के अलावा शहर की दीगर ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के लिए कसीर इज्तिमा देखे गए। उधर मुल्क भर में ईद उल फितर के मौके पर ईदगाहों और तारीखी मसाजिद में कसीर इज्तिमा देखे गए। दिल्ली की जामे मस्जिद के अलावा लखनऊ ईदगाह, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर में हज़ारों मुसलमानों ने खुशी खुजू के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। नमाज ईद के बाद मुसलमानों ने बगलगीर होकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। भोपाल में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। तेलंगाना के रियासती वज़रा और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने रियासत के अवाम और 4 TV के नाजरीन को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। अपने प्याम में रियासती वज़रा और कायदीन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ईद उल फितर रियासत के अवाम के लिए खुशियों का पैगाम लाएगी। मैं दिल की गहराइयों से मैं सबको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और जो लोग मुसलसल 30 दिन रोज़े रखें उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो रोज़ों की अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए और उनकी ईद और बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, 4 TV के मुकम्मल 9 साल हुए हैं। मेरी जानिब से उनके तमाम जो ऑडियंस उन्हें देखते हैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। 4 TV हमेशा मुसलसल जद्दोजहद करते हुए उनके जितना स्टाफ के लोग हैं बहुत अच्छी तरीके से आप तक न्यूज़ पहुँचाते हैं और इसकी वजह से ख़ास तौर से उर्दू चैनल, क्योंकि हमें सख्त ज़रूरत है उर्दू चैनल की। बहुत से हमारे मुस्लिम भाई जो अपनी मादरी ज़बान उर्दू ज़बान है, उर्दू ज़बान में सुनना चाहते हैं, हमारी बहनें भी, घरेलू ख़ास तौर से जो घरों में औरतें बैठते हैं उनके लिए भी दीनियत के बारे में, दीन के बारे में काफ़ी अच्छा 4 TV से तशरीह की जाती है। मेरी जानिब से उनके तमाम जितना स्टाफ है उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मुस्लिम माइनॉरिटी भाइयों बहनों को रमज़ान महीना ईद मुबारक। बहुत खुशी की बात यह है कि रमज़ान हर साल अच्छी तरह से माना जाता है। एक महीने पूरे भाइयों बहनों वो रोज़ा रहते हैं और हर एक के लिए अल्लाह से ये मांगते हर एक अच्छा के लिए और अपने अच्छा के लिए
रोज़ा रह के अल्लाह को वो करते हैं। ये रमज़ान फेस्टिवल का इस अवसर पर ईद मुबारक हमारा सभी मुसलमान भाइयों को, बहनों को, सबको तो अल्लाह अच्छा खुशहालत रखे, अच्छा रखे और स्टेट को और देश को भी बारिश अच्छा समय पर आए, कोई तकलीफ़ नहीं हुए सरकार अल्लाह मालिक को हम विनती प्रार्थना हमारा हम दुआ मांगते हुए सब अच्छा रहना है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये हमारा मांग है और दुआ अल्लाह का दुआ सबका दुआ चाहिए। सब एक ही है, रमज़ान में राम है, दिवाली में अली है, इसलिए सर्वमत समभाव है, सब एक ही है, सबका मालिक एक है। तेलंगाना की पूरी आवाम को, ख़ास करके हमारे मुस्लिम भाई बहनों को रमज़ान के ईद की मुबारकबाद मैं देती हूँ, दिली मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, पूरे अपनी स्टेट को खुश रखे, हर तरह से हमारी स्टेट में खुशहाली रहे और आपकी ज़िंदगी में भी खुशहाली रहे। फिर एक बार ईद मुबारक। तेलंगाना के सारे मुसलमान भाइयों को रमज़ान महीने का बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहती हूँ और मैं दुआ ये करूँगी कि इस रमज़ान महीने में आपके पूरे परिवार में खुशियों से भर जाए। 4 टीवी को कांग्रेचुलेशंस, आपने 9 साल मुकम्मल किया और 9 साल मेरे ख्याल से आप लोगों के तरफ खड़े होकर सरकारों को क्वेश्चन करते आए हैं। आगे भी ऐसा ही कीजिए क्योंकि हमेशा लोगों के तरफ खड़ा होना प्रेस का जिम्मेदारी होता है। और 4 टीवी को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। 4 टीवी के नाज़रीन को मेरी तरफ से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। और ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि इतने जल्दी 9 साल गुजर गए। आपको अपनी 9वीं सालगिरह पर भी बहुत बहुत मुबारक हो। महकमा अखिलती बहबूद की तरफ से तमाम मुसलमानों को और तमाम हमारे तेलंगाना के अवाम को मेरी तरफ से, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद के मौके पर। जो माइनॉरिटी मुसलमान भाइयाँ हैं, जो अभी रमज़ान के मास चल रहा है, रमज़ान के ईद मुबारक दे रहा हूँ सबके लिए। अब 4 टीवी चैनल 9 साल कंप्लीट करके 10वां साल में जा रहे हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज शहर में, आज स्टेट में, आज इंडिया में, वर्ल्ड में अच्छे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है वो इश्यूज़ के लिए 4 टीवी बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, उनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। मैं शहर हैदराबाद के तमाम अवाम नास को ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ और 4 टीवी के 9 साल मुकम्मल होने पर 4 टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर और अमले को बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ जो अच्छी कारकर्दगी है इनकी। मैं तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फितर के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमान और हमारे रियासत तेलंगाना के तमाम मुसलमान भाइयों को मैं ईद उल फितर के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बुराई के खिलाफ सबसे कम दर्जा ये बताया गया है कि बुराई को दिल से बुरा जाने। इसी मकसद के तहत मदीने मुनव्वरा में हुए बम धमाकों की मजम्मत के लिए जुमे को कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम दारुस्सलाम में मुकर्रर किया गया है। सारी दुनिया अब इस हकीकत को तस्लीम करने लगी है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। चंद साल पहले दहशतगर्दी को मुसलमानों से मंसूब करने की कोशिशें की गई थीं, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ ये हकीकत दुनिया के सामने आ गई कि दहशतगर्द सिर्फ मजहब के नाम का गलत इस्तेमाल करता है, वो मजहबी होता ही नहीं। मक्का मस्जिद और अजमेर जैसे मकामात पर मुसलमान कैसे बम धमाका कर सकता था? हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हुए बम धमाकों और मासूम शहरियों की हलाकतों और फिर उसकी तहकीकात के बाद हुए इंकशाफात ने हिंदुस्तानियों की गलत फहमियों को भी दूर किया और उन्हें पता चला कि दहशतगर्द मुसलमान के भेस में भी हो सकता है, हिंदू की शक्ल में भी और किसी भी मज़हब के पैरोकार के भेस में भी। अब मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ के करीब पेश आए बम धमाके ने तो दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि ISIS या दाइश के नाम पर खून खराबा और फसाद मचाने वाला कोई मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान अपने नबी के रोज़े के पास ऐसी हरकत करने की सोच भी नहीं सकता। नबी ने खुद फरमाया है,
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ پھر قرآن پاک میں نبی کے آداب بیان کرتے ہوئے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا گیا۔ جب مسلمانوں کو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے تو پھر مسلمان ان کے روضے پر بم دھماکہ کرنے کی سوچ کیسے سکتا ہے؟ جبکہ قرآن پاک میں اس کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر ذرا سی بھی بے ادبی کرو گے تو تمام اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اور تم کو خبر تک نہ ہوگی۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک مسلمان اپنے تمام اعمال صالحہ ضائع کر کے اللہ کو ناراض کر کے مرنا پسند کرے گا؟ ان تمام حقائق سے یہ بات صاف صاف ہو جاتی ہے کہ مدینہ منورہ میں دہشت گرد حملہ کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، اور دہشت گردی ہر صورت میں اور ہر شکل میں قابل مذمت ہے۔ مسلمانوں کے ہر گوشے، ہر طبقے اور ہر مکتب فکر کے شخص کو اس کی سختی کے ساتھ مذمت کرنی چاہیے، اور اس کاز میں سب کو کندھے سے کندھا ملا کر آگے آنا چاہیے۔ دنیا کا ہر مسلمان اس کو اپنی دینی اور ملی ذمہ داری سمجھے کہ وہ اس برائی کو دل سے برا جانے اور دنیا کو پیام دے کہ دہشت گردوں سے ہم مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی مقصد کے تحت دارالسلام میں کل جماعتی احتجاجی جلسہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو جمعے کو بعد نماز مغرب منعقد ہوگا۔ اس جلسے میں ہر شہری کی شرکت دہشت گردوں کے خلاف ان کے غم و غصے کا اظہار سمجھی جائے گی۔ ساؤتھ زون پولیس کی طرف سے عید الفطر کے دن غریب اور یتیم بچوں کے علاوہ معذورین میں کپڑے تقسیم کیے گئے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے اس موقع پر کہا کہ عید الفطر ایک ایسی عید ہے جسے امیر اور غریب جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن اس موقع پر یتیموں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یتیموں، معذورین اور غریب بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنا بھی ایک بڑی خوشی سے کم نہیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راؤ بھی موجود تھے۔ آج عید الفطر رمضان کا دن ہے۔ یہ بڑا نیک اور پاک فیسٹیول ہے۔ یہ دنیا کا فیسٹیول ہے۔ یہ دنیا میں ہر ایک دیش میں، ہر ایک پلیس میں یہ بہت خوشی سے منایا جاتا ہے۔ رمضان عید سب کو خوشی دیتا ہے، غریب سے امیر تک، کسی سیکٹر پیپل کو یہ بہت اچھی سے خوشی سے منایا جاتا ہے۔ آج ہمارا ساؤتھ زون پولیس ڈپارٹمنٹ پورا آفیسرس جو آرفنس ہے، ان کا پیرنٹس معلوم نہیں تھے، وہ لوگ کے ساتھ اور کوئی ہینڈی کیپڈ کے ساتھ بہت غریب لوگوں کے ساتھ آج کرنے کے لیے فیصلہ کر دیا۔ یہ سیلیبریشن کرنے میں ان لوگوں کے ساتھ بہت خوشی ملا ہے ہم کو، کیونکہ دنیا میں سبھی لوگ ایک ہی ہے۔ وہ گاڈ، سپر گاڈ، سپریم گاڈ سب کو جنم دیا ہے، وہ جنم سبھی طرف سے خوشی لینا ہے۔ آج یہ دنیا کے فیسٹیول میں سبھی لوگ خوشی لینا ہے، اسی لیے یہ آرفنس غریب بچوں کے ساتھ یہ رمضان اتنے بڑے فیسٹیول سیلیبریٹ کرنا ہم کو انر ہارٹ سے بہت خوشی ملا ہے۔ یہ لوگ کے بھی زندگی بھر یہ اللہ ان لوگوں کو خوشی دینے کے لیے ہم امید کرتا ہوں۔ عید الفطر کے موقع پر مغل پورہ پولیس کی طرف سے چار مینار دواخانے میں مریضوں میں پھل تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر اے سی پی میر چوک اور مغل پورہ پولیس اسٹیشن کے عہدیدار موجود تھے۔ عید کے بارے میں رمضان کا ٹائم پر پورا اپنا یونانی ہاسپٹل میں آیورویدک میں پورا پیشنٹ کو ہمارا اے سی پی صاحب، مغلپورہ انسپیکٹرس، مغلپورہ ایس آئیس اینڈ اسٹاف پورا ہمارا میر چوک اے سی پی صاحب کے مل کے پورا پیشنٹ کو یہ آج
रमज़ान के बारे में हम पूरों को ये फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन करें। मदीने मुनव्वरा में हुए दहशतगर्द हमले के खिलाफ 8 जुलाई बरोज़ जुमा को बाद नमाज मगरिब दारुस्सलाम में कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में जलसे में शिरकत की अपील की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस जलसे की निगरानी करेंगे। कल बतारीख 8 जुलाई बाद नमाज मगरिब बमुकाम दारुस्सलाम कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम ज़ेर सदारत मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट मुनक्किद होगा। इस मरकज़ी जलसे एहतजाजी जलसे आम में तमाम मकातिब फ़िक्र के असहाब उलमाए किराम मशाइखीन इज़ाम क़ाइदीन किराम इस जलसे को मुखातिब करेंगे। मदीने पाक में जो बम ब्लास्ट का वाक़या हुआ है उसके ख़िलाफ़ एक कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम कल दारुस्सलाम में बाद मगरिब मुनक्किद होगा और मैं आप तमाम के चैनलों के ज़रिए आवाम से और आमियतुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त करता हूँ कसीर तादाद में इस मरकज़ से आम में शरीक हों, जलसे को कामयाब बनाएं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपनी वाबस्तगी का सबूत दें। हर एतबार से ये एहतजाजी जलसा कामयाब होना चाहिए। अवाम जौक दर जौक हज़ारों की तादाद में दारुस्सलाम पे जमा हो और इस जलसे पुरअमन तरीक़े से जलसे के इनेकाद में कामयाब बनाने के लिए आप ताउन कीजिए। मैं तमाम लोगों का से अपील करता हूं कि वो कल के मरकज़ी जलसे में कल बाद नमाज मगरिब तमाम लोगों के रास्ते दारुस्सलाम पर ख़त्म होंगे, जहां पर एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद होगा जिसकी सदारत नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट करेंगे और तमाम मकातिब फ़िक्र के असहाब उलमाए किराम मशाइखीन इज़ाम क़ाइदीन ये तमाम इस जलसे को मुखातिब करेंगे। इस मरकज़ी एहतजाजी जलसे आम जो मदीने पाक में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है। इसमें हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो, जलसे को कामयाब बनाए और जलसे में मैं अहबाब के शिरकत करके इस तारीख़ी जलसे को कामयाब बनाए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में ईद उल फित्र जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। ईदगाहों और मसाजिद में कसीर इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और इस्लाम की सरबलंदी के लिए रिक़्क़त अंगेज दुआएं। माह रमजान के बाद भी अल्लाह ताला की इबादतों को जारी व सारी रखने आयमा और उलमा की तलक़ीन। दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। तेलंगाना के रियासती वज़रा और मुख्तलिफ क़ायदीन ने मुसलमानों को दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का किया इजहार। मदीने मुनव्वरा में हुए दहशतगर्द हमले के खिलाफ जुमे को दारुस्सलाम में कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम, आमतुल मुस्लिमीन से शिरकत की अपील। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।